کتاب مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان کتاب مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی ہم 19ویں آیت اور 20ویں آیت خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ جی پڑھیے، جس بھی بھائی کو بہن کو حوالہ ملا ہے وہ ضرور پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں 2 آیات خداوند کے پاک کلام میں سے آج رات ہم تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، جی دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضر نہ پہنچے گا۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بولیے ہاللیلویہ۔ کتنے لوگ یہاں پر کلام مقدس کو سن کر اس پر عمل کرنے کے لیے آئے؟ ہاللیلویہ۔ پاسٹر صاحب نے صرف ہاتھ اوپر نہیں کیا، باقی سب نے کیا۔ چلیں ہم بڑھتے ہیں، کیونکہ ہم سب خدا کی حضوری میں ہیں، ہم سب ایک ہیں، اور ہمارا مدعا، ہمارا جو پرپز بھی ہونا چاہیے وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ بولے آمین۔ آمین۔ کہ جب یہاں پر خداوند کا خادم اناؤنس کرتا ہے تو ہمیں اس کو خادم سمجھنا چاہیے، کلام کو سمجھنا چاہیے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بولو آمین۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم آج اس کلام کو سیکھیں، ہم غور کریں گے پیچھے ہم نے اب تک کیا سیکھ لیا۔ لاسٹ تھرسڈے کی عبادت میں ہم نے کیا سیکھا؟ کس کس کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ جون آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد؟ آپ بتاؤ بھائی۔ مرکز کی انجیل اس کے 9 باب اور اس کی 16ویں 17ویں آیت میں آپ نے سکھایا تھا کہ ایک شخص تھا، اس کے بیٹے کے اندر گنگی روح تھی۔ کون سی روح تھی؟ گنگی روح تھی۔ ہوا کیا؟ سافٹ ویئر چینج ہو گیا۔ سافٹ ویئر کیسے چینج ہوا؟ کہ گنگی روح تو تھی بیٹا کے اندر میں، علاج تو کروانے آیا تھا باپ اپنے بیٹے کا، لیکن علاج ہو کس کا گیا؟ باپ کے۔ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں اعتقاد رکھتا ہوں، اور پھر یسوع کو کہہ رہا ہے کہ میری بے اعتقادی کا کیا کر؟ علاج وہ اپنے بیٹے کا کروانے آیا ہے، اور یہاں پر وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے دوائی دے، میرا علاج۔ تو یہ بات ہم نے سیکھی تھی۔ ٹاپک ہمارا کچھ اور تھا، ہمارا ٹاپک اور تھا گناہ پر تھا۔ ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ یہی بات ہو رہی تھی۔ ہم سب نے کہا کہ ہم کیا ہیں؟ اس کو میں نے سکھانا تھا، لیکن کسی اینگل سے نہیں سکھا سکتا، بات کہیں اور چلے گی۔ وہ بھی بات بڑی ضروری تھی، ہمارے تک پہنچی کافی ساری باتیں۔ ہم نے یہ سیکھنا تھا کہ کیا ہم آزاد ہیں، لیکن آج میں اس ٹاپک کو بیان نہیں کروں گا، آج ہم کچھ اور سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر تقریباً زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ توبہ یافتہ بیٹھے ہوئے ہیں، بدمی ایسی ہے۔ ہم نے کیا کی ہوئی ہے؟ توبہ کی ہوئی ہے، ہم نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 15 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 3 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 1.5 سال، کسی کو 1 سال، اور ابھی تک کچھ نے توبہ کی بھی نہیں، بپتسمہ لیا بھی نہیں۔ تو زیادہ تر باتیں توبہ یافتہ لوگوں کے لیے ہوں گی کہ ہم نے توبہ تو کر لی، بپتسمہ بھی لے لیا، ہم نے توبہ بھی کر لی، بپتسمہ بھی لے لیا۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ توبہ کرو اور بپتسمہ لو تو روح تمہیں کیا ملے گا؟ تو روح القدس تمہیں کیا ملے گا؟ انعام میں ملے گا۔ تو کیا ہمیں یہ انعام ملا ہے؟ انعام میں ملے گا کیا؟ کیا یہ ہمیں انعام ملا ہے؟ اس کے 3 نظریات ہیں۔ جی یس یس، کون کون کہہ رہا ہے یس مجھے ملا؟ 1 2 3 4 لوگ کہہ رہے کہ مجھے ملا ہے، روح القدس ہمیں ملا ہے۔
आमीन। इस दिलेरी के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम खुदा के पाक रूह को अपने अंदर महसूस करने का इकरार करते हैं। हालेलुया। ये भी एक बड़ी जबरदस्त दिलेरी है। तो पाक रूह इसके तीन नजरियात में बता दो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अंदर भी शुरू से पाक रूह है, पाक रूह आया तो हमने तौबा की। कुछ लोगों का ये कहना है कि पाक रूह आया तो हमने क्या की, इसलिए पाक रूह हमारे अंदर शुरू से ही होता है जब हम तौबा करें। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब हम तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, तो फिर हम दुआ में मांगेंगे पाक रूह तो हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और कुछ लोग दुआ में मांगते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारे अंदर है, ऑलरेडी है। और कुछ लोग मतलब कहते हैं कि जी पाक रूह जो है हमें अभी मिलना है। मतलब तीन तरह के नजरियात पाए जाते हैं। हमने कहा बाइबल बयान करती है कि पाक रूह, खुदा का रूहुल कुदस जो एक इनाम है, जो एक गिफ्ट है, क्या वो हमारे अंदर मौजूद है? तो तकरीबन थोड़े से लोगों ने जवाब दिया जी हाँ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके अंदर खुदा का रूहुल कुदस नहीं है, जो खुदा के रूहुल कुदस से भरा नहीं है, वो आजाद नहीं है, वो अभी तक गुलाम ही है। किसका? गुनाह। किसका? गुनाह। तो खुदावन ने हमें गुनाह की गुलामी से क्या किया हुआ है? किसको किया? मुझे किया, आपको किया। खुदा ने गुनाह की गुलामी से क्या किया? आजाद किया। आजाद करने का प्रोसीजर क्या है? तौबा और बपतिस्मा। और फिर क्या मिलेगा? जब रूहुल कुदस लाइफ में आ जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। तो आजाद जो बंदा हो जाता है, आपको पता है कि शागिर्द जो यीशु मसीह के साथ चलते थे, क्या वो गुलाम थे या आजाद थे? उसका सवाल है। शागिर्द यीशु मसीह के कितने थे मालिक? 12। क्या वो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे? क्या वो आजाद थे? नहीं। क्या फिर गुलाम थे? आजाद नहीं थे। नहीं। ये तो दो चीजें होगी, आजाद थे, आजाद नहीं है। आजाद क्यों नहीं? क्यों आजाद नहीं? बताएं अभी बात एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि यहूदा की मिट्टी में लालच आ गया था, उसने यीशु मसीह को पकड़वा लिया था। लालच और गुनाह है। मतलब यहूदा इस्करियोती आजाद नहीं था, बाकी आजाद था। ऐसा कैसे? वो आजाद नहीं थे, लेकिन खुदा ने कहा था जब आजाद नहीं थे। आजाद नहीं थे, खुदा ने कहा आजाद नहीं थे मतलब हमने ये बात करी, आजाद नहीं थे। आप बताएं कैसे कैसे आजाद नहीं? क्योंकि खुदा ने जब आसमान पर यीशु मसीह उठाया गया, तुमने कहा रूह कुदस तुम पाओगे। अच्छा। तुम एक यात्री हो पर खुदा का था। अच्छा। दुआ में मजबूत नहीं खुदा के। रूहुल कुद्स क्या है? उनमें दिलेरी नहीं थी। जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो सारे छोड़ के भाग गए थे, लेकिन जब बाद में अगर पाक रूह मिला ना, तो फिर उनमें दिलेरी आई और फिर पाक रूह मिला तो क्या आई? दिलेरी आई। ठीक है। तो जब यीशु मसीह जो खुद उनके साथ साथ चलता है, तो वो पाक रूह से कम है, और वही तो सब कुछ है। जब यीशु आसमान पर जाने वाला था तो मैं जाता हूं, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे अब देखते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ना देखोगे, लेकिन फिर मुझे देखोगे। किसे? मुझे ही। यानी कि मैं जाता हूं और मैं फिर दोबारा अपना पाक रूह, तो वो रूहुल कुदस की सूरत में फिर दोबारा अपने शागिर्दों के अंदर आ गया। पहले भी साथ था, अंदर नहीं था। क्योंकि अगर उनके अंदर होता है खुदा का तो खुदा हमारे साथ है, लेकिन वो उसे छोड़ के ना भागे। उसे छोड़ के ना भाग भाग। उसका साथ है। ऐसा नहीं, अच्छे से शागिर्द होती है। नहीं ठीक है। आप ये बात जो कहना चाह रही हैं, मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर आप पढ़ें लूका 14 में 24 बात 45 में वहां पर लिखा, फिर यीशु ने उनका जहन खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को समझे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यीशु उनके साथ साथ चलता था। और आपको अगर हवाला याद है पहला करंथियों 10वें बाब का, वहां पर लिखा है कि वो चट्टान जो बनी इस्राएल कौम के साथ साथ चलती थी, वो चट्टान कौन थी? तो जो शागिर्दों के साथ साथ चल रहा है वो कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह उनकी प्यास बुझा रहा है, चट्टान उनकी प्यास बुझा रही है, नहीं बुझा रही, उन्हें को फिक्र है। यीशु मसीह ने हवाला में बयान किया, यीशु से सवाल किया तुम्हारे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु ने क्या जवाब? हाँ हाँ बोले, इस बात से वो बात समझ आएगी कि जब तक दुल्हा यानी रूहुल कुद्स उनके साथ है,
वो रोज़ा बराती रोज़ा नहीं रख सकते। तो यीशु साथ रखा उन्होंने, जब तक यीशु साथ था क्या उन्होंने रोज़े रखे? यीशु जब मतलब उनसे बदनी तौर पर जुदा होता फिर क्या रखे जाते? बोले आमीन। अख्तियार पर बात करेंगे, बात थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अख्तियार, यीशु जब आसमान पर जाने वाला था, यीशु मसीह ने जब मुनादी कर रहे थे तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अख्तियार दिया। क्या दिया जी? किनको दिया? किनको दिया? अख्तियार किनको मिलता है? जो क्या होता है? जो क्या होता है? अख्तियार उनको मिलता है जो शागिर्द होता है। यीशु ने अपने शागिर्दों को क्या दिया है जी? इख्तियार दिया। अगर आप भी इख्तियार लेना चाहते हैं कि मैंने तो कोई इख्तियार हो गई, मेरे पास भी इख्तियार हो, मैं भी बीमारों पर हाथ रखूं, बीमार अच्छे, मेरे पास भी इख्तियार हो ताकि मैं भी यीशु के नाम से मौजूद कर सकूं, तो इख्तियार लेने के लिए हमें बनना क्या पड़ेगा? डिसाइपल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? शागिर्द बनना पड़ेगा, डिसाइपल बनना पड़ेगा। और एक शागिर्द बनने के लिए हमें उस्ताद के करीब आना पड़ेगा, किसी को उस्ताद मानना पड़ेगा। आमीन। तो जब हम एक उस्ताद के करीब आएंगे, यीशु के करीब आएंगे, बाइबल के करीब आएंगे, तो हम ऑटोमेटिक की शागिर्द की सूरत में आ जाएंगे। तो जब हम शागिर्द बनेंगे तो खुदा हमें इख्तियार देगा। क्या देगा? यीशु ने अपने शागिर्दों को क्या दिया? हमने जब तौबा की, बपतिस्मा लिया, क्या हमें ये इख्तियार मिला है? अगर नहीं मिला तो फिर सोचिए कि हम अब तक शागिर्द ही, जिनके पास है वो शागिर्द, जिनके पास इख्तियार नहीं है वो शागिर्द नहीं है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस शागिर्दों को इख्तियार में बताती है कि शागिर्दों को इख्तियार मिलता है। क्या हम सिर्फ ऐसे ही दुआएं करवाते रहें? क्या हम सिर्फ ऐसे ही मतलब जो है वर्शिप करते रहें, ढोलकियां तबले कोड़ दे रही? हाँ, कभी उसके लिए मतलब कभी उसके आगे सर कर दिया दुआ कराने के लिए, कभी उसके आगे सर कर दिया दुआ करवाने के लिए। क्या हमारी बस ये जिंदगी यही है? जी, हमारी जिंदगी बस यही है कि हम बस मतलब कभी किसी दर पर, कभी किसी दर पर, कभी किसी दर पर? क्या यीशु ये चाहता है? क्या यीशु ने हमें दर बदर का किया होगा? उसने हमें इख्तियार दिया है। हम कर सकते हैं कब? जब मैं और आप शागिर्द बने। हमारे पास इख्तियार आएगा कब? जब हम शागिर्द बन जाएंगे, हम शागिर्दियत में आएंगे, हमारे पास इख्तियार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इख्तियार। लेना चाहते हैं? कौन को लेना चाहता है कि मेरे को इख्तियार है? ओहो, आप कब तक अपनी ही बीमारियों पर सोचते रहे? आपके पास अगर इख्तियार होगा, आप अपने अंदर से भी बीमारियों को निकाल सकते हैं। आप अपने ऊपर मुनादी कर सकते हैं, आप अपने आप के ऊपर इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं उस इख्तियार को जो यीशु ने, जो उस्ताद जी की तरफ से मुझे मिला है, मैं उस इख्तियार को इस्तेमाल करता हुआ, ऐ बीमारी तुझे कमांड करती हूँ, निकल जा मेरे बदन से। निकले कब? जब हमारे पास इख्तियार होगा। और इख्तियार कब मिलेगा? जब हम क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया है, यीशु मसीह ने यहाँ पर कुछ कहा है। पढ़िए बहन, क्या कहा है? देखो, पढ़िए 10वें बाब को। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। यीशु अपने शागिर्दों को कह रहा है कि मैंने तुमको क्या दिया है? इख्तियार दिया। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। क्या कौन सा इख्तियार मिला? सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। किनको कुचलना है? कौन है ये सांप? कौन है ये बिच्छू? ये कहां पर मिलेंगे? कभी ढूंढे? खुदावन ने कहा देखो मैंने तुम्हें क्या दिया? किस लिए? ताकि सांपों को और बिच्छुओं को कुचलो। कभी कुचला? कौन है? कहां पर मिले? कौन से सांप? जो बाहर बियाबान में सांप होते हैं, नालियों में होते हैं। बिच्छू कौन से? जो घरों में से कभी कभी निकल आते हैं। यीशु मसीह ने इन बिच्छुओं पर हमें इख्तियार दिया है, इनको कुचलने का कहा है। ये कहां पर मिलेंगे? ये बताइए, ये बिच्छू, ये सांप हमें कहां पर मिलेंगे? नहीं पता? ये सारी वो पुलिस की शरारतें हैं जो हमारे, ये मिलेंगी कहां पर? ये तो मुझे पता है कि सांप जो है वो इब्लीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो काटता है, डंग मारता है। और इब्लीस भी, बिच्छू भी इब्लीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो भी डसता है। लेकिन ये कहां पर मिलेगा? सांप कहां पर मिलता है? ये अपनों में से मिलता है।
अपनों में से मिलता है, सही है, यस, ये मेन पॉइंट है। कहां पर मिलेगा हमें ये सांप, और कहां पर कुचलना है हमने? कुचलना फिर किसे हुआ? मैं को, अपने आप को खत्म करना है। इसलिए यीशु ने कहा है अपनी खुदी का, यही है सांप को कुचलना, यही है बिच्छू का सर कुचलना। अपनी खुदी का हमने क्या करना है? इनकार, मैंने क्या करना है? इनकार, और आपने इनकार, किसका? यीशु का। नहीं, खुदी का। समझ आ रही है? यीशु ने हमें क्या दिया? इख्तियार, ताकि हम सांपों को और बिच्छुओं को क्या करें? कहां पर मिलेंगे ये? हमारे अंदर हमारे ना क्या करो, मेरे सामने हमारे नहीं, मेरे अंदर, मेरे वही कहेगा मेरे अंदर सांप मिलेंगे। आपको कह सकता है कोई? पादरी साहब ने भी कहा, और ये होते हैं, होते हैं, पादरियों के अंदर होते हैं, एवेंजलिस्ट के अंदर होते हैं, डिकनस के अंदर होते हैं, पादरी की मिसेस के अंदर होते हैं, बच्चों के अंदर भी होते हैं। क्या? सांप और बिच्छू, और इख्तियार किसे मिला है? शागिर्द। मैं एक पादरी, मैं एक मतलब एक बाप भी हूं, मैं एक शोहर भी हूं, मैं एक बेटा भी हूं, मैं बहुत सारे रिश्तों के साथ मुंसलिक हूं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, आप अपनी बात करें। लेकिन इसके साथ साथ मैं शागिर्द भी हूं। हालेलुया। हालेलुया, तो शागिर्द को क्या मिला? इख्तियार, वेरी गुड। किसको कुचलने का? सांपों, सांपों का और बिच्छुओं को कुचलने का क्या मिला? इख्तियार, किसको? शागिर्द को मिलता है, बाप को नहीं मिलता। मैं क्या कह रहा हूं? अब बाप है नहीं, प्यार नहीं है। बाप बन गए हैं तो प्यार मिल जाएगा आपको, सांपों बिच्छुओं को कुचलेगा? ऐसा नहीं है। हाँ, हम बेटे हैं, ये भी एक इख्तियार है ना, ये बेटा है, इनको इख्तियार है, बाप इनको इख्तियार है। हाँ, ये शोहर है, इसका पास इख्तियार, वो इख्तियार अलग है। लेकिन जो शागिर्दों के पास इख्तियार है, जो यीशु मसीह के शागिर्दों के पास इख्तियार है, वो कुछ अलग है। वो सांपों को बिच्छुओं को कुचलने का इख्तियार है। और सांपों और बिच्छुओं को हम उस वक्त कुचल सकते हैं बैंशनाज, जब हमें उनके ठिकाने का पता होगा कि ये कहां पर है। या हम उनका इंतजार करते रहते हैं कि कब तक वो सांप निकल कर बाहर आए और फिर मैं ऐसे क्या करूं। असी इंतजार च रहने कि कितनी देर सांप बाहर आए या कितनी देर बिच्छू बाहर आए, फिर उनको कुचला। इससे पहले कि वो बाहर आए, उसके तमाम तरह के अड्डे जला दीजिए इख्तियार के साथ। अड्डा कहां पर है? हाँ? अड्डा कहां पर है? अंदर ही है। अड्डा कहां पर है? सब कुछ कहां से निकलता है? नहीं, स्टोर कहां पर होती है? मुंह से, जुबान से बात। बाइबल में लिखा है जो इंसान के, बोलो भाई, जो इंसान के दिल में वही अच्छे खजाने से। अच्छी चीज क्या है? कलाम। बुरी चीज हर तरह का सांप, हर तरह का। आप समझ आए कुचलना किसे है? आप समझ आए बिच्छू क्या है, सांप क्या है? बोले हमें कुचलना किसकी? एक दूसरे की जुबान को कुचलना। जी, हमने ये रिसर्च करनी है कि ये सांप मिलेगा कहां पर जिससे मैं क्या करूं, कुचलूं। ये बिच्छू कहां पर मिलेगा जिसे मैं कुचलूं। तो जब आप गौर करेंगे तो ये हमें बाहर कहीं नहीं मिलेगा, ये हमें अपने अंदर खुद ही मिलेगा। मिलेगा या किसी न किसी सूरत में मिलेगा। या घमंड की सूरत में मिलेगा, या गरूर तकब्बुर की सूरत में मिलेगा, या झूठ या चोरी की सूरत में मिलेगा, ये नाफरमानी की सूरत में मिलेगा। ये सांप मिलेगा जरूर किसी न किसी तरीके से। ये बिच्छू मिलेगा जरूर। आप इस बिच्छू से, इस सांप से हर रोज हमारा पाला पड़ता है, लेकिन हम इसे कुचलते। आज कहने नाम ही खैर खुदा दी मखलूक, यही होता है। खैर कोई गल खुदा माफ कर दे। देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया। अख्तियार उनके पास है निकालने का, कुचलने का, जो शागिर्द है। लेकिन जो अब तक शागिर्द नहीं बना, जिसका कोई अब तक बाइबल टीचर ही नहीं है, हाँ,
जिसने अभी तक अपने बाइबल टीचर को एक्सेप्ट ही नहीं किया लाइफ में, वो बंदा अख्तियार नहीं पा सकता। बहन शनाज, आप सो रही हैं, वो बंदा अख्तियार यही है वो सांप जिसे हमें कुचलना है, यही है वो बिच्छू जिसे हमें कुचलना है। ये नींद, ये सांप की वही चीज है। हमें इन्हीं चीजों पर गलबा पाना। पढ़िए आगे बहन, आगे बढ़ते हैं। और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। कितनी? सारी। दुश्मन कौन? यस, दुश्मन कहाँ मिलेगा? मेरे अंदर। दुश्मन कहाँ मिलेगा बहन? हमारे नहीं कहना, क्योंकि हमें दूसरों के बारे में क्या पता है, सानू अपने बारे में ज्यादा पता है। मैं अपनी इसलिए बात करता हूँ और इकरार करना भी चाहिए। लिखा है दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या हो? कितनी कुदरत पर? सांपों बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर। अरे भाई, गालिब तो तब आएंगे जब हमें दुश्मन का पता होगा। दुश्मन पर गलबा हम तभी पा सकते हैं जब हमें उसे एग्जैक्ट प्लेस का पता होगा कि ये किस जगह पर बैठा हुआ है हमारा दुश्मन। तो कहां पर मिलेगा? हमें दूसरों के दुश्मन नजर आते हैं, हमें दूर दूर वाले दुश्मन नजर आते हैं, लेकिन जो पास ही में बैठा होता है वो दुश्मन नजर नहीं आता। तो ये अपना बगावत पर उतर आया है। हालेलुया। बड़ा जबरदस्त टॉपिक हमने पिछले दिनों डिस्कस किया, रब याद है? तो ये अपना बगावत पर सीखेंगे कभी इसको भी। तो हमें दूर दूर नजर आते हैं, ये सांप भी नजर आएंगे, दूसरों के सांप नजर आते हैं, दूसरों के बिच्छू नजर आते हैं कुचलने के लिए, दूसरों के दुश्मन नजर आते हैं दूर दूर वाले। लेकिन जो दुश्मन हमारे बिल्कुल करीब है, जो हमारे अंदर छुप कर बैठा हुआ है, मेरे अंदर या आपके अंदर बैठा हुआ है, उसे हमने कभी कुचला ही? वो तो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, वो तो अंदर ही अंदर अपनी फौज तैयार है, किए जा रहे हैं, और फौजों को तैयार किए जा रहा है। वो मतलब अपने ऐसे उसने दस्ते तैयार कर दिए हैं, ऐसे बड़े बड़े लश्कर अंदर तैयार कर दिए हैं। याद है एक शख्स जिसके अंदर 2000 बदरूहों का क्या था? वो यही था, वो यही चीज थी कि वो दूसरों को तो मारने के लिए उठ जाता था, वो दूसरों को तो मारता था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मेरे अंदर ही 2000 बदरूहों का क्या है? लश्कर कैसे पैदा होते हैं? क्या अचानक से सारे पैदा हो जाते हैं? नहीं। एक होता है और एक से ही आगे, जी हाँ, आगे काम चलता है। अगर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को क्या कर देता है? अगर थोड़ा सा भी गुनाह है मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, क्या कितना? तो फिर आगे पूरी लाइफ ही डेड है। क्या है? डेड है। अब डेड है और आप फील करवा रहे कि मैं जिंदा हूं। तो ये गुनाह ही एक्चुअली में सांप है, ये गुनाह ही एक्चुअली में बिच्छू है, ये गुनाह ही हमारा सबसे बड़ा। कहां पर मिलेगा ये दुश्मन? कहां पर मिलेगा बहन? कहां पर मिलेगा? नहीं, अपने नहीं कहना। यस, ये कहेंगे, आपको कुछ फील होगा जब आप ये कहेंगे कि मेरे अंदर, फिर उसे पता चल जाएगा कि मेरे बारे में बात हो रही। इसलिए कुछ मतलब हमें ये कहना चाहिए, इकरार करना चाहिए कि वो दुश्मन मिलेगा कहां पर? मेरे अंदर मिलेगा। तरह तरह की मतलब हमारे अंदर ऐसी बातें पाई जाती हैं, ऐसे गुनाह पाए जाते हैं जो हम जानते हैं कि ये मेरे अंदर कमजोरी है। नहीं जानते? जानते कि नहीं जानते? हाँ, हम जानते हैं अपने आप को, हम बेहतर जानते कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है। तो वो जो कमजोरी है आपके अंदर, वही सांप है, वही बिच्छू है, और वही हमारा दुश्मन है जिस पर हमें गालिब आने का हुक्म दिया गया है। क्या आना है हमने? क्या आना है हमने? कायन को क्या कहा गया भाई? कि गुनाह तेरे दरवाजा पर दबका, उस पर क्या आया? आया वो नहीं, लेकिन गुनाह उसके ऊपर। आज भी यही हो रहा है। आज भी खुदा कायन से मुखातिब है कि गुनाह दूसरे के दरवाजा पर, तेरे मेरे दरवाजा। यही बात है। किसके दरवाजे पर? सारे बोलो जरा, कहां पर? दरवाजा कहां मिलेगा? दरवाजा किसे कहा गया? यस, गुनाह कायन से मुखातिब है। आज भी खुदा कायन से
कलाम कर रहा है, कायन जिसने अपने भाई को मारा है। आपको पता है आप सबने अपने भाई को मारा? कौन है आपका भाई? किसने मारा? यस, अच्छा है, समझ आई। हम नहीं मारे। हम कौन है? आदम की, वो आदम की वजह से ही तो मरा है। वो नहीं मरा, उसके गुनाह के बदला में तो यीशु आया। यस, हम बात कर रहे हैं कि ये दरवाजा, कायन का दरवाजा कहां पर मिलेगा? ये सब कुछ तो हमारे दरमियान चल रहा है। कायन भी हमें नजर आ रहा है। कौन? मैं। आपको समझ नहीं आ रही? अच्छा, प्यारा समझ नहीं आ रही? नहीं आ रही? क्योंकि ये कुछ बातें मैं उस तरह से नहीं सुनाता, तो कुछ बातें मतलब जुड़े से हमें रूह में आके समझ आती हैं। मुझे प्रॉपर माइंड से समझे कि मैं बातें समझ आएंगी, और ये कुछ डिफरेंट होता है। मैं कुछ और समझाना चाहता लेकिन खुदा कुछ देता है और वो हमें रिसीव करना है। बोले आमीन। हमें क्या मिला है? इख्तियार। इख्तियार किसे मिलता है? शागिर्द को। शागिर्द कौन बनता है? जो यीशु के करीब रहता है। आमीन। हम यीशु के करीब है। हम क्या बन गए? हमें क्या मिल गया है? ताकि हम सांपों को और बिच्छुओं को और दुश्मन की सारी कुदरत पर, मैंने कहा ये सांप को, बिच्छू और दुश्मन कहाँ पर मिलेंगे? मेरे अंदर मिलेंगे। तो जब ये दुश्मन निकल जाएगा, जब ये सांप अंदर से निकल जाएगा, तो जहाँ पर सांप होता है वहाँ पर नापाकी होती है, क्योंकि सांप कोई पाक जानवर, जहाँ पर बिच्छू होता है वहाँ पर नापाकी होती है, क्योंकि बिच्छू कोई पाक चीज नहीं है। जहाँ पर दुश्मन होगा वहाँ पर ऑटोमेटिक डर खौफ होगा कि किसी वेले वार आ सकता है। तो जब आप दुश्मन को ही निकाल देंगे, जब आप दुश्मन पर ही गलबा पा लेंगे, जब आप सांप को ही मैं अपने अंदर से निकाल दूंगा, आप अपने अंदर से निकाल देंगे, तो आपके अंदर क्या रह जाएगा? फिर खुदा की हजूरी आएगी। बोले आमीन। लेकिन अगर हम कहें कि मैं अपने अंदर सांप को भी रखूं, मैं अपने अंदर बिच्छू को भी रखूं, और मैं अपने दुश्मन को भी अंदर रहने दूं, और मेरे साथ मुझे जो खुदा ने इख्तियार दिया उस इख्तियार से काम भी हो, तो ये हो नहीं सकता। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। हम दोनों कश्तियों पर पैर रखकर पार किनारे पर जा नहीं सकते। हमें इख्तियार दिया है। क्या दिया गया? इख्तियार मिला है, और इस इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए। और ये इख्तियार सबसे पहले हमें किस पर इस्तेमाल करना है? यस, अपने ऊपर हमें इस इख्तियार को इस्तेमाल करना है। कौन कौन कहता है कि मैं डिसाइपल हूँ, शागिर्द हूँ? कोई कहता है कि मैं शागिर्द हूँ? शागिर्द है हम सब। यस, हम सब यीशु मसीह नासरी के क्या हैं? हम सब कलाम के शागिर्द हैं, हम सब यीशु के शागिर्द हैं। तो शागिर्दों के पास इख्तियार है, और उस इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए। आपकी कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों नहीं है, कितनी भी पुरानी मसला क्यों नहीं है, कितना भी बड़ा गुनाह जो आपकी लाइफ में रेगुलर हो रहा है क्यों नहीं है, आप उस इख्तियार को, यीशु के दिए गए इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए। आप बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बाइबल में हमने पिछले जुमेरात क्या सीखा कि जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। जो एतकाद रखता है, जो ईमान रखता है, जो इख्तियार रखता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो क्या कर सकता है? इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए, और अपने ऊपर इस इख्तियार को नंबर 1 पर इस्तेमाल कीजिए, और अपने आप को इस इख्तियार के अंदर लेके आइए। अपनी बीमारियों को, अपनी कमजोरियों को खुद हुक्म कीजिए, किसी पादरी के सामने नहीं, किसी पास्टर के सामने जाने का मैं नहीं कह रहा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? जब तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे लिखा है, करवाए नहीं लिखा। ऐसे लिखा, ये यूकूब का हवाला है, यूकूब के खत में लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा। देखा, जब तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो क्या करे? दुआ करे। लेकिन आज हमारे ट्रेंड क्या चला हुआ कि जो साढ़े से मुसीबत आती है असी दुआ करवाने हैं। लेकिन बाइबल कह रही है कि खुद अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें, वो मुसीबत चली जाएगी। दुआ करवाने से भी कभी कभी मुसीबत क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम खुद दुआ कर रहे हैं। ये कलाम आ गया है, खुदा की तरफ से आ गया है, ये बात आ गई आज, इसकी जरूरत है यहाँ पर। इसलिए ये बात आई कि हमें दुआ करवाने के लिए नहीं कहा गया, हमें करने के लिए कहा। बाइबल में क्या लिखा है? बिला नागा, और जब तुम्हें कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो वो भी क्या करे? दुआ करे। और यहाँ पर एक हवाला और मिलता है कि कलीसिया में अगर कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, और कलीसिया के बुजुर्ग तेल मल कर उसके लिए क्या करें? जहाँ पर खादमों को कहा गया कि वो जाए और उसको तेल मल कर दुआ। ये भी बात हमें मिलती है।
लेकिन हमें अपनी मुसीबत में, हमें अपनी तंगी तकलीफ दुख में हमें खुद दुआ करनी है। और जब हम खुद दुआ करेंगे, यकीन कीजिए वो मुसीबत कट जाएगी, वो मुसीबत जाती रहेगी, वो परेशानी दूर हो जाएगी। वो कितनी भी पुरानी क्यों नहीं, वो कितना भी बड़ा काम क्यों नहीं, वो निकल जाएगा यीशु के नाम में। लेकिन इख्तियार इस्तेमाल तो कीजिए, अपना इख्तियार इस्तेमाल तो कीजिए। जो आपके पास है वो बहुत बड़ा है, इख्तियार है आपके पास, और वो है इख्तियार। वो क्या है? मैं इख्तियार की पावर आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इख्तियार की पावर, शागिर्द के पास जो इख्तियार है, मैं उसकी पावर आप सब तक बयान करना चाहता हूँ कि एक शागिर्द के पास क्या पावर है। एक शागिर्द के पास क्या पावर है? आपको पता है पतरस रसूल यीशु का शागिर्द था। पतरस रसूल यीशु का शागिर्द है। पतरस रसूल यीशु का शागिर्द है। जब मुकद्दस पतरस रसूल गली में से गुजरते हैं तो उसका साया बीमारों पर पड़ता है, तो वो बीमार क्या हो जाते हैं? वो दुआ करता, सिर्फ साय से काम। मुकद्दस पौलुस रसूल के कपड़ों से क्या हो जाती थी? वो दुआ करता नहीं है, कपड़े काम कर जाते। क्या है? मस्सा, उनके अंदर मस्सा है, उनके अंदर पावर है, उनके अंदर इख्तियार है। खुदा ने उनको इख्तियार दिया। क्या ये इख्तियार सिर्फ उनके लिए है? क्या सिर्फ वही शागिर्द थे? हम नहीं है। मैं भी शागिर्द हूँ, आप भी शागिर्द हैं। हम सबको शागिर्द बनने के लिए बनाया गया है, बुलाया गया है, मसीही बनने के लिए नहीं। एक खास बात आज मैं कह रहा हूँ, हम सब अपना तारुफ क्या करवाते हैं? भाई आप कौन है? नो नेवर। बाइबल में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि तुम अपने आप को मसीही कहो। हाँ, लोग कहें तो वो बेहतर है, क्योंकि पहले मसीही ताकिया में पहले मसीह कहलाए और लोगों ने उनको कहा था। किनको? किनको? यस, किनको? तो मसीही बनने के लिए शागिर्द बनना। हम शागिर्द बन जाएं सही, ओरिजिनल, फिर हम मसीह बन जाएं, फिर हम मसीही बने। लेकिन आज हम मसीह पहले बनना चाहते हैं और शागिर्द बनने के लिए कोई तैयार ही नहीं। कौन बनेगा शागिर्द? आप बनेगी? आप बनेगी शागिर्द? आप बनेगी? वेरी गुड। हमें शागिर्द बनना है, हमें कलाम के शागिर्द बनना है। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कह सकें कि मैं भी शागिर्द बनूंगी, बनूंगा, या मैं शागिर्द हूँ। बोले आमीन, हालेलुया। शागिर्दों के इख्तियार की पावर देखना चाहते हैं? मेरे साथ हवाला निकालिए, पढ़िए मरकस की अंजील 16वां बाब निकालिए, 15वीं आयत पढ़िए क्या लिखा है। शागिर्दों के पास जो इख्तियार था उसकी पावर चेक कीजिए कि शागिर्दों के अंदर जो पावर खुदा के रूहुल कुदस की काम कर रही थी। पढ़िए बहन क्या लिखा है, 15वीं आयत में क्या लिखा है। और उसने उनसे कहा, यीशु ने शागिर्दों से क्या कहा? कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी कि करो। तमाम दुनिया में जाना है। किनको कहा? शागिर्दों को। कि तमाम दुनिया में जाना है और सारी खलक के सामने किसकी मुनादी करनी है? किसको कहा गया? हम कौन? मतलब ये बात किसके लिए? हमारे नहीं, मेरे लिए। ये बात किसके लिए? क्या हम ये काम कर रहे हैं? सारी खलक के सामने जाओ और अंजील की क्या करो? हम तो यहाँ पर दुआ हो ना, हम यहाँ पर, हम साया हमारा है, हमारी गली में दुआ हो, हमारे मोहल्ले में दुआ हो तो हम नहीं आते, हम जाते नहीं। लेकिन कोशिश में भी बहन हम सुस्ती कर जाते हैं, कोशिश में भी क्या कर जाते हैं। और बाइबल में लिखा है, रोमियो पढ़े 12वें बाब की 11वीं आयत, कोशिश में सुस्ती, हम सुस्ती कर जाते हैं। हमें सुस्ती नहीं कर, हमें रूहानी जोश से भरे रहना है और खुदावंद की खिदमत करते रहना है। बोले आमीन। शागिर्दों को यीशु ने कहा तुम सारी खलक के सामने जाओ और अंजील की क्या करो? हमारी मुनादी क्या होती है? हमारी मुनादी फर्क होती है। अच्छा, हम इस पर बात नहीं कर रहे मुनादी पर। हम शागिर्दों के पास जो इख्तियार था वो कौन सा इख्तियार था? शागिर्दों के अंदर जो पावर काम कर रही थी। आप भी शागिर्द हैं जी? थके शागिर्द है? फिर आगे से बैठिए जी। शागिर्दों के पास इख्तियार है, पढ़िए कौन सा इख्तियार, क्या क्या इख्तियार मिला? जो ईमान लाए, जो क्या लाए? बोले जरा, जो क्या लाए? हम लाए हैं, मैं लाया हूँ, आप लाए हैं। जो इख्तियार जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, हमने लिया है, मतलब हम ईमान भी लेके आए हैं, हमने बपतिस्मा भी क्या कर लिया है। फिर वो निजात पाएगा। वो क्या पाएगा? बाइबल के मुताबिक हम क्या बन गए हैं? निजात याफ्ता। हमने ईमान भी ले आए, हमने बपतिस्मा भी ले लिया, हम क्या हो गए हैं?
बस कहानी खत्म। नहीं। आगे क्या लिखा है? और जो ईमान ना लाए जो ईमान ना लाए, सुनिए, जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। तो क्या ठहराया जाएगा? वो मुजरम है। जड़ा बंदा हाले तक यीशु मसीह दे ईमान ही लैके, नहीं। तो देखिए दुनिया भरी पड़ी है। कितने लोग यीशु पर ईमान आज नहीं लेके आए? हाँ, कितने लोग जिनका ईमान यीशु मसीह पर है नहीं, जो यीशु मसीह को मानते ही नहीं है। हाँ, यीशु को मानते नहीं। कितनी, कौन जाएगा उनके पास? शागिर्द। कौन जाएगा? कौन सा शागिर्द? पतरस कब्र सुट के आए जी, मैं जाऊंगा। खवातीन के बारे में बात जाती है। खवातीन अपनी मर्जी से नहीं जा सकती, इसे अपने शोहर की ताबेदारी करनी पड़ेगी और शोहर के ऑर्डर से वो मुनादी कर सकती है। शोहर के अंडर रहती, दिखा ना कि बीवी अपने शोहर के, ये दोनों मिलकर खिदमत करें, लेकिन शागिर्द खिदमत कर सकते। बोले आमीन। कौन जाएगा? हम जाएंगे। शागिर्द जाएगा। कौन जाएगा? शागिर्द जाएगा। पढ़िए। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे। जी हाँ, जो बंदा ईमान ले आएगा उनके दरमियान क्या होंगे? कौन से मोजे? नंबर 1 पर वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। जी हाँ, कौन? शागिर्द। शागिर्द मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। कहाँ पर मिलेंगी ये बदरू है? मेरे अंदर। तो पहले दूसरे की तो बाद में निकाले ना, पहले मैं अपनी तो निकाल लूं। पहले तो मैं खुद ही बदरूहों का भरा हुआ हूं, तो हम मेरी बहन दूसरों की बदरू हैं। ऐसे ही है ना? अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। दिखाएगा तो दोनों ऐसे ही है। देखा, जो ईमान लाए वो क्या करेंगे? वो मेरे नाम से बदरूहों को वो निकालेंगे। यस्सु के नाम से बदरूहों को क्या करेंगे? हम बदरूहों को तो निकालना चाहते हैं, लेकिन हम ईमान लेके आना पसंद नहीं करते। हम शागिर्द बनना पसंद नहीं करते, लेकिन बदरूहें निकालना हम चाहते हैं कि मेरे वसीले भी काम हो। मैं भी दुआ करूं ये भी हो, अभी डिग जाए, अभी डिग जाए, अभी डिग जाए, पूरी कौम ही डिग जाए, मैं खड़ा रहूं। वो आज यही ट्रेंड चल रहा है, डिगन वाला, डिग जा डिग जा डिग जा। ये कोई मनादी नहीं है, बाइबल के मुताबिक मनादी नहीं है डिगन वाली। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, जेन्युइन बात बता रहा हूँ। ये डिगना कोई मनादी नहीं है। बोले आमीन। ओ जिन्हें डिगे ना उन्होंने कल फिर मिले लगेगा। डिगन हम पर्पज की है, मकसद की है भी आया बंदा शिफा पा गया, पाक रू के लिए जोरदार था। मैं आपको नहीं कह रहा, वो ये अनाउंस करते हैं जब वो गिर जाता है तो क्या कहते हैं? हाँ, शिफा पा गया, पाक रू के लिए क्या कर दें? जोरदार तालियों का। तो वो अगले संडे फिर आएगा, वो डबल बदरू में लेके आएगा, वो फिर और खड़ा होता है आगे। यही होता है, बदरू जब निकलती है तो साथ अपने से बुरी, तो वो फिर दोबारा खड़ा होता है। ऐसे साथ साथ ट्रांसफर होती रहती एक लश्कर तैयार हो। ऐसे भी दुनिया पैदा होती है, गलत मुरादी की जा रही है, कलाम सुनाया नहीं जा रहा, हुक्का फकाई की जा रही। अरे बहन, बाइबल में लिखा है कि खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। ये कलाम आपके अंदर आ गया, जब आपने इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया तो शिफा आपकी है। लेकिन कलाम अंदर है, अगर अमल नहीं हो रहा शिफा भी नहीं मिलेगी। मतलब ईमान लेके आना है, ईमान तो सुनना है, शिफा आपकी। लुस्त्रा का हाल मैं बताता हूँ। लुस्त्रा में शख्स पड़ा था, 8वें बाब में लिखा हुआ, एक लंगड़ा शख्स लुस्त्रा में पड़ा हुआ है। वो सिर्फ सुन रहा ईमान के कानों से। तो पौलुस कहता है इसके अंदर ईमान, शिफा पाने के लायक ईमान है, और वो उसे उठा खड़ा कर देते हैं। सिर्फ कलाम सुनते सुनते वो शिफा पा जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग शिफा पा जाते हैं, कलाम सुनते। कलाम सबको क्लियर कर देता है, कलाम बता देता है कि हम क्या हैं, लेकिन जैसे हम दरवाजे से बाहर होते हैं, साथ बुरी रूहें हमारा क्या कर रही होती, इंतजार कर रही होती है, जान जी दुआ से बाहर आना, मैं जिंदगी कर लेना। अभी शोर है, यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, चोर नहीं आता चुराने, मारने और हलाक करने, लेकिन मैं इसलिए है कि तुम जिंदगी पाओ। चोर आता है, वो चोर तैयार खड़ा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कलाम जो मैंने अब आपको सुनाया, इख्तियार के बारे में, शागिर्द के बारे में, सांप कौन है, बिच्छू कौन है, दुश्मन कौन है, हाँ, कायन कौन है, गालिब किस पर आना है, ये मैंने जो सारी बातें आपको सिखाई हैं, ये आपके अंदर मौजूद है। जैसे ही आपने कमरे से बाहर जाना है, दुआ से बाहर जाना हजूरी से, तो वो इब्लीस तो तैयार खड़ा हो।
लेकिन हमने उस पर क्या पाना है? मैंने ये कलाम भूलने नहीं देना, मैंने चोर तुझे चोरी करने नहीं देना। हम इस पर अमल कर आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 पर कि वो मेरे नाम से बुजुर्गों को निकालेंगे। शागिर्द की बात हो रही है, शागिर्द बुजुर्गों को निकालता है। शागिर्द खुद बुजुर्ग गिरफ्ता, अगर खुद बुजुर्ग गिरफ्ता होगा तो वो दूसरों को आजाद कर फर्क है। आप कौन से शागिर्द हैं? बुजुर्ग गिरफ्ता है या बुजुर्गों से आजाद करने वाले हैं? अपने आप को टैली कीजिए बाइबल मुकद्दस से, पढ़िए बहन आगे। नई नई जुबानें बोलेंगे। नई नई जुबानें बोलें। कौन सी जुबानें? नई नई। कौन बोलेंगे? शागिर्द। कौन बोलेंगे? हम बोल रहे हैं। हमारे ऊपर कोई नई जुबान आई है, हमारी कोई जुबान नहीं हुई है। नई जुबान से क्या मुराद है? एक तो गैर जुबान होती है। नई जुबान वो जुबान जो हमारी ना हो, वो हमारे लिए क्या है? नहीं है। ऐसे जैसे हमारे भाई वो चाइनीज से बोलते हैं, इनके लिए जुबान क्या है? नहीं है, न्यू है ना। देखा, वो नई नई क्या बोलेंगे? जुबानें बोलेंगे। एक और जुबान आपको बताना चाहता हूं, जब हम गुनाह में जिंदगी गुजारे होते हैं तो हम इसी जुबान से झूठ बोल रहे होते हैं। लेकिन जब हम गुनाह को छोड़ देते हैं, जब हम तौबा कर लेते हैं, जब हम ये जुबान झूठ वाली छोड़कर सच बोलना शुरू कर देते हैं, तो जो सच वाली जुबान होती है वो नई जुबान होती है। एक ये भी जुबान, नई नई जुबानें बोलेंगे। आगे नंबर 3 पर सांपों को उठा लेंगे। आगे बात हुई, सांपों को उठा लेंगे। पीछे क्या पड़ा? और बिच्छुओं को कुचलेंगे, यानी कि डरेंगे नहीं उनसे, ये उन्हें उठा उठा कर पटकेंगे। कौन? जिनके कौन से शगीर होके अख्तियार वाले, कौन से वाले? वो सांपों को उठा लेंगे। आगे नंबर 4 पर अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे अगर जहर भी पी लेंगे तो इन्हें कुछ जर ना पहुंचे। इन्हें कुछ जर, कोई हलाक करने वाली चीज पी लेंगे, शागिर्दों की बात हो रही है, तो वो जहर भी इनकी बॉडी पर असर। और ऐसा हुआ है, यूहन्ना आरिफ पर ऐसे अप्लाई किया गया। यूहन्ना आरिफ के बारे में जब आप हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो लिखा है उसे जहर पिलाया गया, उसे जहर, लेकिन उसके ऊपर उसकी बॉडी पर उसे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो शागिर्द है। और आपके लिए भी ये बात ऐसे, मेरे लिए भी ये बात है। जब हम प्रॉपरली शागिर्द बन जाते हैं और जब हमें कोई धोखे से कोई चीज़ खिलाने की कोशिश करता है, कोई चीज़ पिलाने की कोशिश करता है, तो वो अगर हम इसका इल्म नहीं है, हमें पता नहीं, पी जाते हैं, तो वो जहर हमारी बॉडी पर असर नहीं करेगा। वो जहर हमारी बॉडी पर असर नहीं करेगा। इस तरह नहीं करना कि ठीक है जी, यीशु के कलाम से लिखा सी कि जहर असर नहीं करेगा, मैं तो शागिर्द का सामने जहर में पी लेगा, तो वो गलत है, वो बंदा मर जाएगा, क्योंकि वो खुदावंद को आजमा रहा है, आजमाना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से खुदा की आजमाइश नहीं की यीशु ने की। यीशु मसीह ने क्या कहा शैतान को? खुदावंद अपने खुदा की ये वाली आजमाइश हमने नहीं कर, कि पता नहीं खुदा करता है कि नहीं। वो क्या कहता, बेतकाल आदमी क्या कहता, अगर तू कुछ, ये वो वाली बात आ जाए, देख लेना होंगे है कि नहीं, मारना। तो आगे 5वीं बात कौन सी लिखी है? वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, अच्छे हो जाएंगे। क्या करेंगे? सिर्फ हाथ ही रखना, तो यही शागिर्द कर रहे, हाथ रखेंगे तो बीमार क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे, शिफा पा जाएंगे। लेकिन आज क्या है? आज बीमारों पर हाथ रख के गिराया भी जा रहा है, फिर उठाया जा रहा है, फिर गिराया जा रहा है, फिर उठाया जा रहा है, फिर गिराया जा रहा है। हाँ, और घंटा घंटा, डेढ़ घंटा एक ही बीमार पर हाथ रखकर क्या की जा रही है, लेकिन शिफा फिर भी नहीं। मिलेगी 2 मिनट के लिए, हाँ कुछ फील हुआ है, बस उसको जो कुछ फील हुआ है उसे डबल फिर दोबारा कमजोरी अंदर आती है। ठीक है, जो शागिर्द होता है उसके पास ये अख्तियार है कि वो बीमारों पर सिर्फ हाथ ही लगाएंगे तो बीमार क्या पा जाएंगे? तो रसूलों से ये काम होते थे, उनके कपड़ों से, उनके साये से, उनके किरदार से, उनकी बातों से, उनके हाथ लगाने से लोग शिफाएं पाते थे। ये एक शागिर्द की हाल है, शागिर्दियत की मतलब एक जो है शिक्के है, मैंने वो आपके सामने रखा कि ये होगा जो शागिर्द होगा वो ये काम करेगा, तो बुजुर्गों को क्या कर देगा? निकाल देगा। वो नई नई जुबानें सांपों को क्या करेगा? उछलेगा, उठा भी लेगा, पटकेगा। हाँ, वो फिर जहर भी पी लेगा तो उसका भी असर उस पर नहीं होगा। और वो बीमारों पर हाथ रखेगा तो बीमार क्या हो जाएंगे? शिफा पाएंगे। हम कौन हैं?
मैं कौन हूँ? कोई है शागिर्द? हम शागिर्द हैं और हम वो शागिर्द हैं जिसके पास अख्तियार है, और इस अख्तियार को सबसे पहले हमने अपने ऊपर अप्लाई करना। किसके ऊपर अप्लाई करना? अपने बदन के अंदर या बदन के ऊपर जो भी बीमारियां हैं उसको कमांड करनी है, उसको अख्तियार से झिड़कना है। अपनी, बाहर वाले की बात नहीं, पहले अपनी, हमने अपनी बीमारियों को, अपनी कमजोरियों को झिड़कना है। किसके नाम से? उस अख्तियार के दिए, उस अख्तियार को इस्तेमाल करना है जो यीशु ने दिया है। यीशु के नाम से कमांड करनी है अपनी बीमारी, कोई भी बीमारी, वो बदन की है, रूह की है, जान की है, कोई भी है। हाँ, कोई बुरी तस्वीर है, कोई ऐसा गुनाह है जो आप बार बार कर रहे हैं, आप चाह कर उसे छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छूट नहीं रहा, उसके ऊपर कमांड करें, हुक्म दें यीशु के नाम से, वो निकल जाएगा। वो क्या हो जाएगा? लेकिन कौन हुक्म देगा? तो शागिर्द बनकर हुक्म देना, अख्तियार वाला शागिर्द बनकर हुक्म देना। लेकिन अगर ऐसे कि पोका बस ठीक है जी, थोड़ी सी दुआ कर ली अपने पास, बस नहीं, फुल कमांड से, फुल अख्तियार से उसे हुक्म देना, वो निकल जाएगा। बोले आमीन। उन सांपों को, उन बिच्छुओं को, उन दुश्मन को हमने कुचलना है जो बाहर नहीं है, जो बाहर, जो मेरे अंदर ही बैठे हुए, जो आपके अंदर ही छुप छुप कर बैठे हुए, हमें उन पर गालिब आना है। हमें उन पर क्या आना है? क्या आना है? कैसे आएंगे? जब हम शागिर्द बने, जब हम अख्तियार वाले शागिर्द बने। बोले आमीन। हालेलुया। तो खुदा ने मौका दिया तो मेरे हम इस पर और बात करेंगे, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो खुदा इस कलाम के वसीला से हमें सबको बरकत बख्शे और हम सबों को इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए सभी दुआ के लिए सर को झुकाएंगे, अपने सर को